بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک وان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب والی ربک فارغب۔ حاضرین محفل، ڈیئر آڈینس، یہ حضور کا شجرہ نسب نامہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک، یہ شجرہ نسب نامے کی 31واں پارٹ ہے، یعنی 31ویں کڑی ہے۔ آج کا موقف، آج کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کو پیغمبری کیسے عطا ہوئی، یعنی جینیالوجیکل لائنیج فرام حضرت آدم علیہ السلام ٹو دا پریزنٹ ڈے۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام کا قرآن میں ذوالکفل نام سے قصہ درج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالکفل علیہ السلام کے لیے پیغمبر مبعوث کیا بنی اسرائیل میں۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے خداوند قدوس کی وحدانیت کا درس دیا اور کہا کہ اے لوگوں، میں خداوند قدوس کا پیغمبر مبعوث ہوا ہوں، لہذا مجھ پر ایمان لائیں۔ اور اللہ کی ذات کے لیے وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے اکیلا جانے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلی ذات ہے۔ چنانچہ چند لوگ آپ پر کچھ ایمان لائے، باقی لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا، ہنسی اڑائی، ٹانٹنگ کرنے لگے، ہوڈنگ کسنے لگے کہ دیکھیے یہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے پیغمبر مبعوث کیا ہے، ذوالکفل کے لیے، اور کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے پیغمبری کے لیے لائق نہیں رہا۔ چنانچہ چند لوگ آپ پر کچھ ایمان لائے، آپ دین کی تبلیغ جاری اور ساری رکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا کہ اے ذوالکفل علیہ السلام، آپ خداوند قدوس کی راہ میں جہاد فرمائیں۔ جو بھی بنی اسرائیل ہیں ان کے لیے کلیکٹ اکٹھا کر کے بنی اسرائیل کے جو بھی افراد ہیں، جو بھی آپ کی امت، جو بھی بنی اسرائیل کے شخص ہیں، سب کے لیے جہاد کی ترغیب دے۔ چنانچہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ مجھ پر خداوند قدوس کا حکم نازل ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد فرمائیں۔ تو بنی اسرائیل نے آپ کو یہ کہہ کر کے ہنسی اڑائی کہ ہم جہاد نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے لیے سب سے بڑا خوف ہماری جان کا ہے، جان ضائع ہوں گی، دیئرفور اس لیے وی کین ناٹ وار، ہم نہیں جنگ کر سکتے۔ چنانچہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود بھی یہ قوم راہ راست پر نہیں آئی، تو آپ چند جو کہ صحابی تھے اور جو کہ چند لوگ آپ پر ایمان لائے تھے انہیں لے کر کے آپ جہاد کے لیے نکلتے ہیں، باقی لوگ جان کے خوف سے نہیں گئے۔ تو حضرت ذوالکفل علیہ السلام جب واپسی میں آئے، واپس دیکھا تو یہ سب کے سب لوگ جو تھے بنی اسرائیل کے، اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو کر کے سب کی روح قبض ہو گئی، سبھی مر چکے۔ بعض روایت میں ہے 4000 لوگ تھے جو مرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ 8000 لوگ مرے تھے۔ حضرت حسن بصری سے روایت کی ہے کہ 80,000 لوگ اس عذاب الہی میں جو کہ مرض طاعون چلا تھا اس میں ڈیمیج ہوئے تھے، اس میں روح قبض ہوئی تھی 80,000 لوگوں کی۔
तो कसरत की वजह से इन लोगों के लिए दफन नहीं कर सके, इसलिए हजरत जुल्कुफ्ल अलैहिस्सलाम ने एक हाशिया, एक दायरा खींच दिया, एक दीवार खींच दी। ये जितने भी मुर्दा थे सबके पास में एक दीवार खींच दी। तो सूरज की गर्मी से जब ये इनके गोश्त पोश जब पिघले और इनमें बहुत बेहद बदबू आई, तो अल्लाह ताला के बारगाह में हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम गिरफ्तारी करते हैं, इल्तिजा फरमाते हैं कि ऐ बार इलाहा, तू वादहु ला शरीक है, तू रब्बुल इज्जत है, तू खूब जानने वाला है। ये मेरी उम्मत के लोग थे लेकिन मुझ पर ईमान नहीं लाए, तो क्या है अल्लाह ताला इनका गुनाह बख्श दे। इनने जो गुस्ताखी की है, जो तेरी शान में बदकलामी की है, अल्लाह ताला इन्हें माफ फरमा और इनके लिए जिंदा कर दे। तो अल्लाह ताला ने हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम की इल्तिजा पर, उनकी दुआ पर अल्लाह ताला ने इन सब के लिए जिंदा कर दिया। जिंदा होने के बाद हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ईमान लाओ खुदा पर, लेकिन ये कौम बनी इसराइल इतनी शातिर और इतनी चालाक थी, फिर आपने जादूगर कह करके टाल दिया और फिर आप पर ईमान नहीं लाए। हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम मजबूरन मुल्क शाम की तरफ, दरिया दजला है, कूफा की तरफ, जहां आजकल कूफा है, उधर के लिए हिजरत करके चले जाते हैं और वहीं पर अल्लाह ताला की वहदानियत का दर्स देते हैं। गरज और वहीं पर जाके आप इंतकाल फरमाते हैं और वहीं दरिया दजला के पास में आप मदफून होते हैं। ये हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम का किस्सा अल्लाह ताला ने सूरह स्वाद में और सूरह अंबिया में जिक्र फरमाया, बड़ी इख्तिसार के साथ, बड़ी तफसील के साथ। अब इसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि असहाब कहफ कौन थे। असहाब कहफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बादशाहत के बाद, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पैगंबरी के बाद मिस्र के अंदर एक बादशाह जो कि मुस्लिम था, उसकी हुकूमत थी। मुल्क रोम का बादशाह दकियानूस बहुत ही बड़ा बादशाह था, बहुत ही जर्रा लश्कर था, बहुत ही इसकी इज्जत और वक़ार थी, दुनिया में इसका चर्चा था। पूरी दुनिया में उस वक्त के हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग रोम का बादशाह दकियानूस था। दकियानूस बुत परस्त था, तो उसने देखा कि मिस्र का बादशाह मुसलमान है, ईमान वाला है, तो एक जर्रा लश्कर को देकर के मिस्र पर चढ़ाई कर देता है। उधर से जो बादशाह मिस्र, शाह मिस्र थे, उनकी फौजों ने भी मुकाबला किया दकियानूस का, लेकिन उसका लश्कर जर्रार था। इस वजह से जर्रार लश्कर की वजह से शाह मिस्र के लिए डिफीट मिलती है, हार होती है, और रोम का बादशाह था, उसके लिए फतहमंदी हासिल होती है, विक्ट्री हासिल होती है। गरज मिस्र के लिए तख्त ताराज कर देता है, औरतें, लौंडे, गुलाम बना लिए जाते हैं आदमी। शाह मिस्र के 7 लड़के थे शहजादे, वो भी गिरफ्तार होकर के आते हैं, वो भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। उनके लिए दकियानूस अपना गुलाम बना लेता है और अपने वतन रूम में लाता है। तो ये शहजादे जो थे शाह मिस्र के, उन्हें जब गुलाम बना लिया तो उनकी ड्यूटी दकियानूस ने लगाई अपनी देख रेख के लिए, क्योंकि दकियानूस बादशाह इतना मोटा ताजा था कि अपने हाथ से अपना आबदस्त नहीं ले सकता था, इतना फीट था, इतना मोटा था, इसका हाथ नहीं पहुंचता था। तो इसने उन शहजादों के लिए अपना गुलाम बनाया अपनी देख रेख के लिए, और वो जो शहजादे थे वो इसके लिए आबदस्त कराया करते थे। लैट्रिन के बाद में, पखाने, बैतुल खला के बाद में उसके लिए आबदस्त कराया करते थे, निलवाया करते थे। इसने अपनी नौकरी में, अपनी गुलामी में अपने लिए रखा था दकियानूस बादशाह ने शहजादों के लिए। एक रोज एक शहजादा गायब था, तो इस दकियानूस ने उस शहजादे के ऊपर 100 दुर्रे लगवाए। 100 दुर्रे लगे तो ये तमाम भाई, 7 भाई बड़े परेशान थे कि क्या किया जाए,
इस बादशाह के नाशाइस्ता जुल्म फसाद को देख करके तंग आ गए थे। आपस में मीटिंग की, कंसल्ट किया कि भाई इस बादशाह से किस तरीका से निजात हासिल हो, इसकी कोई ना कोई प्लानिंग सोची जाए, कुछ ना कुछ तरकीब निकाली जाए। चुनाचे बड़ा भाई मिलिखा इन शहजादियों का जो था वो कहता ठीक है, तरकीब है मेरे पास, मेरे साथ में एक है ओपिनियन। जब ये बादशाह चौगान खेलने के लिए फील्ड में जाएगा, जब मैदान में जाए घुड़सवारी के लिए, तो हम सब लोग भी साथ होंगे, और ये जब घोड़े की रेस लगाए तो हम सब लोग अपने अपने घोड़ों को लेकर के फरार हो जाएंगे। ये तरकीब है। चुनाचे ये बादशाह कयानूस चौगान खेलने के लिए फील्ड में मैदान में जब जाता है तो ये सातों भाई जो उसके गुलाम थे ये भी साथ में जाते हैं, इन्हें लेके जाता है। चौगान का मतलब ये होता है कि दो घोड़ों की सवारी करना। एक घोड़े पर बैठा हुआ है पीठ पर और एक घोड़ा खाली चल रहा है, तो कभी इस घोड़े की पीठ पर कभी उस घोड़े की पीठ पर, इसके लिए चौगान कहते हैं। तो ये बादशाह दक्यानूस चौगान खेलने जब फील्ड में पहुंचा तो इन गुलामों को भी साथ लेकर के गया। जब ये रेस लगा रहा था घोड़ों की, तो इन सातों भाइयों ने मौका देकर फरार हो गए अपने अपने घोड़े लेकर के। बादशाह ने सिपाहियों के लिए हुक्म दिया कि पकड़ो, लेकिन रात हो चुकी थी, शाम का अंधेरा हो चुका था। तो ये जंगल में रात भर दौड़ते रहे। सुबह के लिए जब देखा तो एक पहाड़ में गार नजर आई, उस गार में ये छुप गए। तो इस तरीके से ये गार में छुप गए पहाड़ की, और इनके साथ में एक कुत्ता भी था। उसके लिए इन लोगों ने बहुत ही मारा कि हट जाए, वरना ये हमारे लिए गिरफ्तार करा देगा, अरेस्ट करा देगा। गरज वो कुत्ता नहीं हटा, तो इन सब भाइयों ने सोचा शायद मसलहत खुदाबंदी है, रहने दो। वो कुत्ता भी वहीं बैठा है, और बाद रवायत में आया है ये 5 भाई 6ठा कुत्ता है। बाद रवायत में आया है कि 6 भाई और 7वां कुत्ता, 6 भाई और 7वां कुत्ता है। तो ये तमाम के तमाम सातों भाई सो गए गार के अंदर, थके थे, सो गए। सोने के बाद जब इनके लिए भूख की शिद्दत हुई और ये जब उठे, तो ये बड़ा भाई मिलिखा कहता है कि मैं नानबाई के यहाँ जाता हूँ, कोई शहर देखता हूँ, अगर कोई शहर है आसपास में तो खाना लेकर के आता हूँ। तो इनका भाई मिलिखा, इन्हें असहाब कैफ के नाम से कुरान में जाना जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में असहाब कैफ के नाम से इनका वाक़या दर्ज किया है, सूरह कैफ में इनका वाक़या नाजिल फरमाया है। तो असहाब कैफ में से एक शख्स जो बड़ा भाई था मिलिखा, वो शहर में नानबाई के पास जाता है कि खाना लाया जाए। जब नानबाई से वो खाना लेता है और उसके लिए जब वो सिक्का देता है, तो नानबाई चौंक जाता है सिक्का देखकर। कहता है भाई कौन जमाने का सिक्का चला रहे हो आप, ये इस वक्त राज नहीं है, ये नहीं चल रहा है, ये हमारी हुकूमत का सिक्का नहीं है, ये अनवैलिड है। मिलिखा कहता है वो कहता है हु आर यू, कौन है? फ्रॉम वेयर केम, कहां से आए हैं? तो कहता है मुल्क रोम के बादशाह दक्यानूस के बादशाह में रहते हैं, हम उसके गुलाम हैं, और ये उसी की हुकूमत का सिक्का है। हम कल आके पहाड़ की गुफा में सोए हैं और आज रोटी लेने आए हैं, आप कहते हो ये सिक्का राइज नहीं है, सिक्का अनवैलिड है, चल नहीं रहा है। तो नानबाई कहता है शायद तुम्हें कोई खजाना मिला है, कोई दफीना मिला है तुम्हें गड़ा हुआ। ऐसा करो आधा हिस्सा भी मेरा भी हो खजाने में, वरना मैं बादशाह से शिकायत कर दूंगा कि तुम्हारे लिए कोई खजाना मिला है जमीन के अंदर। चुनाचे इसी बात में बात बढ़ जाती है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बादशाह के सिपाही आ जाते हैं, और नानबाई कहता साहब इन पे ये सिक्का है, ये चला रहे हैं, ये पता नहीं कौन जमाने का सिक्का है। बादशाह सिपाहियों से जब मालूमात कराता है तो पता लगता है कि ये सिक्का 309 साल पुराना है। बादशाह रोम दक्यानूस की हुकूमत का सिक्का है, 309 साल पहले ये सिक्का चलता था। मिलिखा कहता है हम तो कल ही आकर सोए हैं गार में और सुबह उठे हैं, 309 साल कैसे हो चुके इस सिक्के के लिए। गरज बादशाह के दरबार में बुलाए जाते हैं, तो बादशाह मालूमात करता है, तो कहता है बादशाह हम लोग शाह मिस्र के शहजादे हैं, बादशाह रोम ने हमारे वालिद पर हमला किया और हमें गिरफ्तार कर लिया, हम गुलाम बन गए, हमें गुलाम बनाया है। बादशाह के नाशाइस्ता जुल्म फसाद को देख करके हम बहुत ज्यादा तंग आ गए। हमने सोचा था कि राह फरार इख्तियार की जाए, चुनाचे हम
उसके लिए छोड़ करके भाग खड़े हुए हैं। और सुबह देखा तो एक गार मिली पहाड़ में, वहां हम सो गए, जाके सो के अब ये उठ के आए हैं तो खाना लेने आए जब भूख की शिद्दत बढ़ी। बादशाह जब इतिहासकारों से, अपने स्पेशलिस्ट से जब इंक्वायरी कराता है तो पता लगता है कि 309 साल पहले रोम के अंदर दकियानूस की हुकूमत थी। ये उसके जमाने का सिक्का है। चुनाचे आप खाना लेकर के गार में जाते हैं, बादशाह भी आता है और तमाम भाइयों को देखता है। गार में एक कुत्ता भी है, तो ये सोचते हैं कि अब हमारे लिए इस दुनिया में कुछ नहीं है, अब हम फिर सो जाते हैं। तो वो सातों भाई और कुत्ता जो है फिर उसी गार में सो गए हैं। तो इनके लिए असहाबे कैफ के नाम से जाना जाता है। ये कयामत वाले रोज उठेंगे, जब कयामत होगी तब इंशाअल्लाह ताला ये सातों भाई उठेंगे। इन्हें असहाबे कैफ का लक़ब दिया जाता है, इनका टाइटल असहाबे कैफ है। चुनाचे ये वाकया खुदावंद कुद्दूस ने सूरह अंबिया में और सूरह स्वाद में बड़ी इख्तिसार के साथ, बड़ी डिटेल वाइज, बड़ी तफसील के साथ नाजिल फरमाया है। हाज़िरीन महफिल, इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम हजरत उज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे वही इल्तिजा करते हैं कि इस वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, सब्सक्राइब किया जाए, लाइक किया जाए, क्योंकि आज हमारे अहबाब के पास इतनी फुर्सत नहीं जो कि मजहबी किताबों का मुताला कर सके। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए हकीर सरापा पुर तक़सीम ने ये शजरा नसबनामा, जो कि तारीख़ इस्लाम का निचोड़ है, जो कि तारीख़ इस्लाम का एक जुज़ है, वो सीरियल वाइज, डिटेल वाइज, पार्ट वाइज हम इसके लिए बयान कर रहे हैं। इसके लिए सीरियल वाइज देखा जाए, पार्ट वाइज देखें। अगर बीच कूच अगर देखेंगे तो आपके लिए कोई नॉलेज, कोई जानकारी हासिल नहीं होगी। इसे हम जड़ से लेकर के चल रहे हैं और ये शाख तक जाएगा। तो इसके लिए सीरियल वाइज देखा जाए, तब आपकी समझ में आएगा। मैं फिर इल्तिजा कर चुका हूँ, मैं बड़ी आसान जुबान में, बड़ी इजी लैंग्वेज में, बड़ी सरल भाषा में ये तारीख़ इस्लाम का निचोड़ है, मैं बयान कर रहा हूँ। क्योंकि आपने तकरीरें बहुत सुनी होंगी, बड़ी गाढ़ी जुबान में, बड़े सख्त लफ्ज़ व अल्फाज में आपने तकरीरें सुनी होंगी। लेकिन मैं ये सिर्फ आपसे एक वे ऑफ टॉकिंग, एक गुफ्तगू जैसी कर रहा हूँ जिससे हर खास वाम की बखूबी समझ में आए। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ और वही कहता हूँ, एक्सक्यूज मी, आई हैव डिस्टर्ब्ड यू। बहुत बहुत आई एम ग्रेटफुल टू यू। बहुत बहुत आपका एहसान है, मैंने आपका टाइम वेस्ट किया, इसके लिए मैं माजरत खा हूँ। और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इसके लिए शेयर करें। इंशाअल्लाह अगली मुलाकात में, अगली वीडियो फिर मुलाकात होगी।